All right, we're live. Assalamu alaikum, Nazreen. Welcome to PSLnama at DN Sport. I'm your host, Waqas. I have with me Sohaib, Hassan Bhai, and Gibran. Um, Great game, guys. Quetta finally have, जिसे कहते हैं, um, discontinued their losing streak and won up Karachi. एंड सुहेब जो है काफी खुश हैं आज, बहुत अच्छे मूड में है। बड़े दिनों बाद मैंने इनको ब्रॉडकास्ट पे मुस्कुराते हुए देखा है, तो या लाइक सुहेब, आई एम गोना जस्ट very quickly come to you and ask you about the game. So thoughts on the match, bro? Sir, battle of the bottlers or one team won at bottling the match than the other. हमने आखिर में देखा कराची किंग्स जो है वो पैनिक करी, कैच भी ड्रॉप हुए, मिसफील्ड्स एंड आल्सो आई मीन इट Right. वाज एन एक्सपेक्टेड मैच. टू बॉटम टीम्स जो टेबल पे थी उनके दरमियान जो मैच आई थिंक जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वैसा मैच था. क्रेडिट टू गप्टिल and credit to Sarfraz as well. Valiant inning considering कि उसके हाथ बहुत ही ज्यादा and I'm not sure if he's gonna play the next match because उसका हाल काफी बुरा लग रहा है. I think there is a fracture in there. मुझे लगता है hope he's fine. पर credit to Guptill and Sarfraz, brilliant innings by both of them, especially Guptill, and yeah, good result for them. And funnily, I mean, Quetta Gladiators are in a Pakistan type of situation where they have to win both matches and bank on the Zalmi to lose at least three, if not four matches, so they could qualify. I mean, there is again statistically a chance, so they'll be like they'll like to cling on to it. Right. If I look at the table, right, so Quetta have now played eight, and if they win another two, so they go at 8 points. And Zelmi's played six. They have like four games, which means that they have to only win two out of the four, and KK and QG are out of it, right? So yeah, a bit of a like the proposition doesn't look very promising. But So there Hassan is Bhai, there is another very interesting prospect is that if PZ loses all their games from here, say, okay, and KK somehow wins the last game and Quetta wins one game and loses the other, then you have three teams at 6 points and no, qualification to it six does. points lead. It ऐसा कैसे हो सकता है? Like if कैसे I नहीं हो look at सकता? if I look at the fixtures, right? You look Uh, at the fixtures, पेशावर के चार मैच हैं, क्वेटा, देखो लाहौर, देखो, इस्लामाबाद और अब मुल्तान. अभी अभी कर लेते हैं, राइट? वेरी क्विकली, कल पेशावर का है, राइट, लाहौर के साथ। लाहौर से पेशा- लाहौर से लाहौर wins, Yankees, right? right? Lahore wins, they go at 14 points. Peshawar stays at 6 points. Okay. Then उसके बाद Islamabad versus Multan, inconsequential match है, तो we'll not discuss about that. ऐसे Then है ना. Peshawar versus Quetta. Peshawar loses again, so they've played 8 and then they only have 6 points. Quetta is at क्वेटा 6. ऐसे. Quetta has 6 then. इस्लामाबाद लाहौर इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं बात करते उसकी. पेशावर मुल्तान, मुल्तान विंस, पेशावर रिमेन एट 6, मुल्तान के हो गए बाकी पता नहीं कितने 300 पॉइंट. और उसके बाद कोयटा वर्सेस मुल्तान, राइट? मुल्तान विंस अगेंस्ट कोयटा, सो कोयटा रिमेन एट 6. 6. ओके, लेट्स रोल डाउन टू He's right. Completely इस्लामाबाद right. वर्सेस पेशावर. पेशावर loses again. Peshawar loses again, and then for the thing that you are asking, Karachi has to beat Lahore a third time consecutively. वहां पे कुछ नहीं होगा. जस्ट फॉर फन ना कि वो हम ये बात कर रहे थे कि 8 पॉइंट्स पे जो है वो क्वालिफिकेशन 5 साल में एक दफा हुई है एंड इधर जो है वो आई मीन एवरीथिंग गोज अजीब अजीब सा. सो मतलब यू कैन हैव अ क्वालिफिकेशन ऑन 6 पॉइंट्स एज वेल. By the वैसे way, if that happens, हाँ KK goes through. हाँ वही मैं कह हाँ रहा था के Karachi is के the only one with a positive net rate out of these three. Exactly. ट्रू. I mean, So यार, वकास को स्माइल आ रही है ना वकास को. दैट्स व्हाई यू सी कि बता इस मेरा ये पॉइंट लाने की वजह ये थी कि आप टेबल पे अभी तक केके को इसलिए नहीं लिखा हुआ कि दे आर आउट ऑफ द लाइक लीग बिकॉज ये पॉसिबिलिटी अभी मौजूद है. Imad Wasim right after the match कह रहा था कि we're out of the tournament and उसको भी नहीं पता उसको and he's probably going to draft next season. उसको उसको यार मेरा लेकिन ऐसा होगा तो मेरा मेरा एनालिसिस दिखाना पड़ेगा ना उसको.
अगर ऐसा हुआ तो लाइक जो है जल्मी फैंस आग लगा देंगे। यार वैसे लॉ ऑफ एवरेजेस ये कहती है कि ज़ल्मी शुड गो थ्रू आउट ऑफ दीस। हाँ मतलब अब यार But it अच्छा would be a, हाँ ये it would, truth be द- told, it would be a very bad advertisement for PSL if Karachi or Quetta go through. they need अच्छा एक Waqas, I think चीज you were saying they need 2 out of 4. I think they go through if they win 1 out of 4. One out पिशावर of three, sorry. हाँ नहीं नहीं पिशावर हैज 4 मैचेस लेफ्ट। Four अगर matches left. एक जीतते हैं और 3 हारते हैं इसका मतलब है देयर नेट रन रेट टेक्स अ हिट। और यहाँ से अगर कोयटा 2 जीतता है देयर रन रेट नहीं ऑब्वियसली अगर इंप्रूव, सो अगर देखो दैट ना कम्स वेरी अगर क्लोज। अगर so if Peshawar wins, अच्छा हाँ you what you're saying नहीं if Quetta wins 2-2 तो फिर मसला हो जाएगा पेशावर को। हाँ Otherwise Yeah. they need एग्जैक्टली otherwise they need 1 out of 4. Basically, for Peshawar to qualify without any tangibles, Peshawar has to win two out of the next four, right? If they win Yeah. only one, if they win only one, then it comes down. अगर पिशावर एक और जीत गया तो कराची निकल गया, दैट्स इट, देखो कराची का अगर टूर्नामेंट ओवर। अगर अगर पेशावर 4 में से 1 भी जीतता है ना और वो मैच कोयटा के अगेंस्ट होता है दैट मींस दे क्वालिफाई, तो कोयटा तो फिर बाहर हो जाएगा ना। मतलब देयर वुड या बी नो चांस कि कोयटा 8 पे जा सकता है। तो पेशावर का ये है, पेशावर के 3 मुश्किल मैच है, लाइक इट्स इस्लामाबाद, लाहौर एंड मुल्तान, एंड एक थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर मैच अगेंस्ट कोयटा। सो आई थिंक लाइक यहाँ से ये लग तो यही रहा है एंड होना भी यही चाहिए कि पेशावर जमी वुड क्वालिफाई विद एक सो सीमलेस सा हमारे आंसर। हमारे व्यूअर्स के लिए टू सम इट अप, इस खिचड़ी को अगर हम अच्छे अल्फाजों में बता दें, for Karachi to qualify, Peshawar has to lose everything going forward, and Quetta has to win only one game out of their next two. तो उससे नेट रन रेट पे आ जाएगा, कराची गोज थ्रू, राइट? गिवन कराची अगला अपना मैच जीत जाए, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन लेट्स अज्यूम जीत जाता है। फॉर Quetta to go through, right? Quetta needs to win their both remaining games, so they go at 8 points, and Peshawar has to win only one game out of the next four, and that game can't be against Quetta, right? तो फिर वो नेट रन रेट पे आ जाएगा, और फिर मोस्ट प्रोबेबली क्वेटा ग्रोस थ्रू, क्योंकि उनका नेट रन रेट अच्छा होगा, वो 2 जीतेंगे, पिशावर 3 हारेगी तो उनका नीचे आएगा, राइट? एंड फॉर पिशावर जर्नी टू गो थ्रू, इट्स वेरी सिंपल, दे हैव टू विन 2 out of the next 4 एंड देर थ्रू विदाउट एनी, फिर वो टॉप 4 चली जाएंगी। तो जो भी हमारे व्यूअर्स ये देख रहे हैं, दैट्स द टेबल राइट नाउ गोइंग यार फॉरवर्ड। वैसे विकास कोई कंट्रोवर्शियल बात करने लगा हूँ बट यहाँ पे ना मैं जहाँ पे टेबल देख रहा हूँ ना वहाँ पे सामने ऑड्स भी आ रहे हैं फॉर एंड अगेंस्ट के। सो जो अभी ऑड्स है ना वो तो जल्मी के आ रहे हैं अगेंस्ट के, बट कराची के ना इवन आ रहे हैं, ऑलमोस्ट इवन आ रहे हैं लाहौर। सो यार द थिंग इज कि लाइक कराची का क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। आई स्टिल बिलीव कोयटा जो है वो कर लेगी, क्योंकि कोयटा के पास ना गेम्स अपने हाथ में है। कराची नीड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गो देयर, लाइक लिटरली दे हाउ मेनी गेम्स, 4 5 6 you were saying ना कि again 6 versus गेम्स। Lahore, या again versus Lahore is very difficult, मतलब so many games on the trot, but जो Yeah. odds है ना they're quite even Stevens। वो तो पर्सनल का मसला है ना, और हिस्टोरिकली वो फिर कैलकुलेट किया जाता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ है, बट पता है 6 गेम्स कराची के क्वालिफाई करने के लिए 6 गेम्स हैव टू गो देयर विद। कल एज अ कोयटा फैन शायद मैं ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए था क्योंकि कल इट वाज द लास्ट होप दैट आई हैड कि यार मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट। पर अगर इफ दे हैड बीटन इस्लामाबाद yesterday, आई थिंक दे वुड बी सिटिंग ऑन 6 पॉइंट्स राइट नाउ कोयटा, एंड अगले 2 में से एक भी जीतते तो वो 8 पे आ जाते, इंडियन रन रेट आ जाता। नाउ दे हैव टू विन 2 एंड देन दे हैव टू वेट फॉर द पेशावर जल्मी matches and all. So कल इसलिए probably मैं ज़्यादा frustrated था. They were very close. They had to fin. They should have closed down the match वगैरह वगैरह. अच्छा, But एक चीज मैं जिब्रान भाई के पास आऊंगा, वी हैवंट टच्ड जिब्रान भाई, लाइक 10 मिनट हो गए हम तीनों बकवास। अच्छा आपने बकवास, हमने अभी तक बकवास ही करी है अभी। कोई ऑब्जेक्टिव बात नहीं करी, कोई ऑब्जेक्टिव बात नहीं करी। I want to go to Gibran bhai, right? And I want to ask about
कि अभी सुहेब ने बोला कि पेशावर कोयटा मैस्ड अप दैट गेम वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, राइट? और फिर इक्वली उन्होंने लाहौर कलंदर्स के 7 आउट कर दिए थे 50 रन पे, एंड दे काइंड ऑफ लॉस्ट दैट गेम एज वेल, एंड दे क्लोज्ड आउट द गेम आज जो उन्होंने जीता है, राइट? सो हम ये मतलब ये एक नैरेटिव हो गया था कि कराची जो है क्लोज मैच हार रही है जिसकी वजह से वो अभी उतने पॉइंट पे, बट Koita also equally has like messed up games that they should be winning. और अगर वो गेम जीत जाते जो उन्हें जीतना चाहिए था, तो अभी उनके जो है 4 पॉइंट के बजाय अगर हम वो 2 गेम ले आए इस्लामाबाद और लाहौर का, तो देर एट 8 पॉइंट्स एंड दे नीड 1 विन आउट ऑफ द नेक्स्ट 2 टू क्वालिफाई. सो क्या ये चीज कह सकते हैं हम कि कोयटा ऑल्सो हैव बिन a bit like unlucky in closing out games as how Karachi have been, and that has been the theme of these two teams in this season. सबसे पहले कि पिछले 10 मिनट से जो है वो मैं खामोश इसलिए भी था कि टेबल्स पे डिस्कशन इज something I don't really enjoy. Sorry, possibilities. There are so many ifs and buts कि I lose myself somewhere. So, but thank you so much. यार बिल्कुल ऐसा ही है. Quetta have been losing matches in the end. बहुत सारे मैचेस ऐसे थे जो कि आखिर में वो निकाल सकते थे. बट मैं एक चीज़ कहूँगा कि दोनों में पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था. अगर आप कंपैरिजन करते हैं कि कराची किस तरीके से आखिर में मैच हार रहा है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन की है. देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ पर्सनल, जैसे आपने कहा था. मैं इससे एग्री करता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस. उनके पास जो है वो आखिर में विकेट लेने वाले बॉलर्स नहीं है. जिस किस्म की इनिंग मार्टिन गुप्टिल ने खेली, अगर 1-2 विकेट टेकर्स आपके पास होते या मैच रोकने वाले होते, तो आई थिंक ये इतनी बड़ी इनिंग नहीं थी. इसको बहुत आराम से रोका जा सकता था. कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स थी मार्टिन गुप्टिल की आज. लेकिन ऑब्वियसली 2-3 चीज़ें हुई. एक तो दैट ओवर बाय फुलर दैट चेंज द इंटायर पिक्चर ऑफ द मैच, और उसमें ऑब्वियसली देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद maybe his hamstring or what, जिस तरह से कमेंटेटर बात कर रहे थे कि फुलर को कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो फुलर जो है वो फुली बॉल नहीं कर पा रहे हैं. सो कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके साथ थी. उस एक ओवर में मैच चेंज किया, तो ये तो क्वालिटी का मसला इनके साथ है यहाँ पे. इसलिए वो आखिर में जाके मैचेस हार रहे हैं कि शुरू में जब वो बॉलें निकाल भी रहे हैं, विकेट्स निकाल रहे हैं. कोयटा इज अ डिफरेंट पिक्चर. दे हैव क्वालिटी बॉलर्स, क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप्स, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई और प्रॉब्लम. कल का मैच आपने देखा, ओडिन स्मिथ की वजह से जो है पूरा मैच ये लोग हार गए. कई मरतबा मे बी फील्ड सेटिंग की वजह से, कई मरतबा बॉलर्स ने, नसीम ने शुरू के 1-2 मैचेस में जो है बॉलें बहुत ज़्यादा बाहर की थी, उसको आकर मार पड़ी. तो आई थिंक दोनों की मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है. के मैं दोबारा रिपीट करूँ इन शॉर्ट बात को समअप करता हूँ क्विकली कि के का अंदर जो है वो क्वालिटी का और पर्सनल के एक ओवरऑल क्वालिटी का इशू है. कोयटा आई थिंक वो दे वर नॉट मैनेज रियली वेल. आखिर तक जाके जिस तरह से उन्होंने मैचेस हारे, अगर उन्होंने अपने आप को सही से मैनेज किया होता तो कम से कम 2 मैच आराम से निकाल सकते थे. सो आई थिंक देयर वाज यस, दोनों के अंदर ये चीज कॉमन थी. Right. I'm gonna come to Hassan भाई, right? And let's जिब्रान भाई ने काफी अच्छा समअप कर दिया जो है दोनों टीम्स का जो अभी इशू चल रहा है, खासतौर पे कोयटा और कराची का, राइट? I want to come back to the game and I want to discuss the game in some cricketing technicality ताकि जो audiences को थोड़ा perspective मिले. 165 on that pitch. Given Rossington made 65 out of the first 40 like deliveries that he faced, right? Do you think that was something that KK lacked? Maybe they were like 20 runs short on the pitch. And secondly, given the chase that Quetta was doing, do you think कि वो थोड़ा इसमें फंस गए उस चीज में कि because it was 165 on the board and not 185, तो उनकी अप्रोच जो है वो डिक्टेट हुई गिवन व्हाट जो स्कोर लगा हुआ था बोर्ड के ऊपर. तो दोनों टीमें, डू यू थिंक, मिस्ड अ ट्रिक व्हाइल बैटिंग, एंड दैट्स समथिंग दैट हैज बीन अ थीम फॉर देम थ्रू आउट द टूर्नामेंट. इफ यू कैन एक्सपैंड ऑन दैट, हसन भाई. Yeah, absolutely यार. मेरा ये ख्याल है कि 164 on this pitch was definitely 20ish runs below par.
और Yeah. मसला ये भी नजर आया कि it was just one guy who was initially batting well from one end, which was Adam Rossington. Yeah. We saw Tayyib Tahir, Qasim Akram struggle initially, and then Shoaib Malik. Obviously, Imad Wasim, despite his injury, I think he did well in the game. और फिर Ami Amin playing, hitting some lusty blows in there. मगर जो मुझे मसला नजर आया थोड़ा सा वो इवन कोयटा की साइड पे वो ये था कि they again relied heavily on Guptill. If Guptill had not played that innings, which he was struggling by the way till he reached 50, I think उसने 40 odd balls for 50 की थी, and then he went berserk. So if he hadn't gone berserk at the end, because it was a high risk strategy, right? तो ये वाली गेम भी कोयटा बॉटल कर रही थी. I remember at one stage जब उमर अकमल आउट हुए, they were like 60 for 5, I think, in 10. 60 something for 5 in 10. और तब यही लगा था कि मैच मोस्ट प्रॉब्ली ओवर हो जाएगा, बिकॉज सरफराज अहमद डिड स्ट्रगल टिल द एंड अगेन. उसने 25 बॉलों पे सिर्फ एक चौका मारा है. एक चीज जो मुझे लगी कि डिस्पाइट द फैक्ट दे प्लेड द वे दे डिड, टीम थोड़ी सी ना अब वेल बैलेंस्ड नजर आई है विद Dwayne Pretorius coming in, and they left him too late. I think जब सरफराज स्ट्रगल कर रहा था ना, there could have been a case of him coming up ahead of Sarfraz, because he got some great hitting ability, and I think he on air बात भी हो रही थी कि why is he being left so late. तो खैर it came off well in the end purely because of Guptill's freak innings. You don't get to accelerate that way at the death, because हमने देखा chasing में मसला होता है, but it happened because of some captaincy issues at KK's end as well. एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आती, and I would want the forum to talk about as well, is the curious case of Mohammad Musa. I mean, this guy had all the ingredients to be one of those straightaway fast bowlers that you look forward to in a youngster. I remember he was 18 when he made his test debut, went for crazy runs. And since He was then, the bowling partner. He was the bowling partner for Shaheen back in under 19, basically. yeah, And even Rahul Dravid. Even Rahul Dravid praised both Shaheen and Musa. These two boys would go on to be very good at Pakistan level. and I understand कि चलो international में तो वो नहीं उस तरह से आ सका. Domestic में भी he's been not doing so well. He seems to go for runs, and he seems like a poor version of, I don't know, Mohammad Sami with the kind of bowling action he had. I mean, peak Sami was also very good. Don't get me wrong. Mohammad Sami in tandems and in certain formats, especially the red ball game, was really good. But जब वो white ball में उसकी ना bowling action भी शायद ऐसा था कि वो एक specific length पे थोड़ा सा कभी बार predictable हो जाता था. Maybe similar issues with Musa, but then we wanted him to do well, we wanted him to play. He's a youngster with promise, but इस तरह की outing जब होती है तो I'm sure management की ना फिर से थोड़ी सी confidence shatter हुआ होगा when it comes to Musa, and he might not play the next game either. So I don't know what's happening with Musa. और जिस तरह से जिब्रान भाई ने rightly pointed out कि जेम्स फुलर का भी जो एक ओवर गया था ना, that actually उससे पहले तक फिर भी I think they needed like 13-14 runs per over. So वो ये दोनों टीम्स की तरफ से कुछ स्ट्रैटेजी का मसला है. हसन एक Can I talk about Musa a bit? चलो जिब्रान भाई आप बोलें, फिर I'll expand on this. Quick question. हसन ने भी कहा कि प्रेटोरियस को काफी देर में लाया गया, उसकी वजह से फर्क पड़ा. What if Odin Smith was there? तो आपके ख्याल में क्या होता मैच का? ये तो सुहेब भी बता सकता है क्या होता. तो ये क्या होता अगर ओडिन स्मिथ होता. अच्छा, ये इतना अपने व्यूअर्स को बताते चले कि सुहेब भाई इतने पेसिमिस्ट हो गए थे उस टाइम पे जब सरफराज आउट हुआ था कि ही रोट ऑन द ग्रुप के विल समहाउ विन दिस गेम. अरे यार प्रेटोरियस के बारे में आई थिंक पिछले 2 या 3 मैचेस से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ही शुड हैव बीन इन द स्क्वाड ओडिन के बदले में. प्रेटोरियस को भी हालांकि आजकल आज जरा सी बाहर पड़ी, लेकिन यू कुड सी इन द बॉलिंग कि यार वो
एक ऑर्डिनरी टाइप ऑफ बॉलिंग में जो बिल्कुल खड़ी हो जाती है यहाँ पे आपके मारने के लिए, उसमें और प्रीटोरियस की बॉलिंग में फर्क था। हालांकि उसने भी लूज बॉल्स दी, But I think he's a better तो हाँ इज बेटर बैटर। लेकिन ये है कि जो जिन बॉल्स पे उसने आमिर यामीन पे जो चौके मारे एंड में, उस पर मैं समझता हूँ ओडीन भी मार लेता, मतलब जो वेरी लाइक लूज बॉल्स थी दोनों बॉल्स में। और बाकी ये कि आई डोंट अग्री विद द पॉइंट, जस्ट माय ओपिनियन, कि सरफराज से पहले प्रीटोरियस का आना चाहिए था, बिकॉज एट दैट टाइम पोजीशन कुछ इस तरह थी, विकेट ज्यादा गिर रही थी। सो माय रीडिंग ऑफ द गेम वाज कि दे डिसाइडेड ऑन पर्पस कि इसको डीप लेके जाते हैं, एंड देन अक्सर ऐसे गेम्स में ही होता है कि आप इसको डीप लेके जाओ एंड देन डीप एंड पे जब आप हिट करना स्टार्ट करते हो, एंड में 13-14 रन पर ओवर I agree, but I बनाना would थोड़ा सा, हाँ हाँ, but पर अगर उसको उसमें गप्टे आउट होता ना, अगर गप्टे आउट हाँ होता हाँ उसको तो मसला हाँ पड़ता, क्योंकि we would have had a new batsman and Sarfaraz also struggling from the other end. ट्रू ट्रू, पर ये कि उस डीप लेके जाने वाली पार्टनरशिप में देन दे हैड प्रीटोरियस एट द एंड, जो उनको आखिर में काम भी आया। एंड आई थिंक सरफराज एट नो पॉइंट वाज देयर टू गेट बाउंड्रीज, उससे लगनी नहीं थी, उसे लग भी नहीं रही थी। हालांकि ही ट्राइड वंस और ट्वाइस, पर उसने सिंगल डबल किया, एंड एक बाउंड्री आई थिंक वेरी टाइमली उसने मूसा को मारी थी। Because उस पॉइंट पे आई थिंक नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि सरफराज अभी बाउंड्री मार सकते, उसका हाथ ही नहीं चल रहा था। तो आई थिंक दैट वाज अ टाइमली बाउंड्री, एंड ओवरऑल आई मीन all is well which ends well। तो वो इस वक्त सरफराज की इनिंग्स भी अच्छी लग रही है, गप्टिल की भी अच्छी लग रही है। अगर हार जाते तो आई थिंक मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। गप्टिल की इनिंग वाज अ बिट लाइक रिजवान की इनिंग्स, a typical Rizwan innings where he just crawls through, works around and then goes berserk in the end। Like अगर आप I think finish कर दो तो यार ये सारी it looks टीम सारी it टीम looks में it looks beautiful if you finish it, पर अगर आप बीच में आउट जाते हो तो it looks very ugly। द थिंग इज कि मैं गप्टिल को ना बेनिफिट ऑफ द डाउट यहाँ पे इसलिए दूंगा क्योंकि जीत गया मैच, राइट। अगर ये चीज बैकफायर हो जाती, क्योंकि 165 इजंट अ बिग टारगेट, राइट। 165 ऑन दिस पिच इन दिस कंडीशन इज बिलो पार, लाइक 40 रन बिलो पार इफ यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो उसमें गप्टिल सही खेला और उसने उस वक्त एक्सेलरेट किया जब उसे करना चाहिए था, एंड ही गॉट क्विटा ओवर द लाइन, व्हिच इज बेसिकली व्हाट वी वांट, राइट। फॉरेन प्लेयर कमिंग इन, गेटिंग द टीम ओवर द लाइन। यहाँ पे मैं थोड़ा बैकट्रैक करूंगा और इस बात, और मैं मूसा जो हसान भाई ने बात छेड़ी थी उसको थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज आई बीन फॉलोइंग मूसा करियर जब से वो मतलब अंडर 19 से आया, उसके बाद फिर उसको 2019 का ऑस्ट्रेलिया टूर में इंडक्ट किया, और आई थिंक उस वक्त वहाब और आमिर ने दोनों ने रिटायरमेंट ली थी, तो शाहीन, मूसा और नसीम एंड अब्बास वर लाइक द 4 पीपल दैट वी वांटेड टू वर्क विद। लेकिन उस वक्त जो है वो लोग इतना एक्सपीरियंस नहीं थे, तो रिजल्ट्स वो नहीं आ सके जो आने चाहिए थे। नहीं आई फिर थिंक हमने इमरान खान सीनियर भी तो खिला दिया था फिर। हमने इमरान खान सीनियर को भी खिला दिया था फॉर सम रीजन, बट लाइक अगर मैं मूसा की बात करूं सिर्फ, राइट, तो मूसा के पास पेस है विच इज एसेंशियल फॉर अ फास्ट बॉलर, बट व्हाट अ लॉट ऑफ bowling coaches और what a lot of people who work in cricket forget कि अगर किसी बॉलर के पास पेस है, 2 बॉलर है, राइट, बॉलर ए बॉलर बी, दोनों 145 कराते हैं, लेकिन दोनों की अगर हाइट में डिफरेंस है ना, तो दोनों को आप एक प्लान नहीं दे सकते बॉलिंग का। इसका फंडामेंटल रीजन ये है कि जब एक लंबा बॉलर अपना हाथ घुमाता है ना, तो उसको बाउंस, कैरी, हर चीज डिफरेंट मिलती है, उसका एंगल बॉलिंग का दूसरा होता है। एक कद में छोटा बॉलर, आई मीन मूसा इजंट शॉर्ट बट ही इजंट टॉल, राइट, ही इजंट लाइक फास्ट बॉलर टॉल, ही इज लाइक व्हाट 5'9", 5'10", राइट। सो वो बॉलर जब बॉलिंग कराता है तो उसका एंगल, उसका आर्म, उसकी बायोमैकेनिक्स कंप्लीटली डिफरेंट होती है। Vikas, one of एक the मिनट, best fast bowlers of all time was let हाँ, आई नो, आई एम कमिंग टू दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज आपने मूसा को ना बॉलिंग प्लान डिफरेंट देना है। मूसा को अगर आप ये बोलोगे कि आप जो है उसको बॉडी लाइन कराने जाओ गप्टिल को, तो मूसा विल ऑलवेज फॉल्टर। अगर आप मूसा को बोलोगे कि आपने एहसानुल्लाह वाली लाइन करानी है, तो मूसा कभी नहीं करा सकता वो, क्योंकि उसकी फिजिकलिटी नहीं है उस तरह की, पेस है उसके पास, फिजिकलिटी नहीं, जिसकी वजह से बॉलिंग जो है ना वो बड़ा ही एक जियोमेट्रिकल जो है आर्ट है, एंगल से आपको बैट्समैन को पकड़ना होता है। मूसा को अगर आपने अच्छा बॉलर बनाना है ना, तो उसको मलिंगा का टेम्पलेट दो। मलिंगा क्या करता था, वाइड यॉर्कर स्लिंग के साथ आती थी, तो बैट्समैन की आई लाइन में ना वो ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करती थी, जिसकी वजह से बैट्समैन को जो है प्रॉब्लम होती थी, और मलिंगा बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज मलिंगा आल्सो वाजंट अ फास्ट बॉलर।
वकार यूनुस हिमसेल्फ इजंट अ फास्ट बॉलर, उसने भी विकेट के अंदर आता था, बॉल को स्लिंग करके फोर्थ फिफ्थ स्टंप में फेंकता था, रिवर्स करके अंदर लेकर आता था। तो अगर मूसा को इस तरह के प्लान दे ना कोई बॉलिंग कोच कि आप छोड़ दो वो बॉडी लाइन वाली लेंथ, करानी ही नहीं है, आपने वाइड यॉर्कर करानी है या आपने स्लिंगी करके बॉल को कर्व करके अंदर लाना है, रिवर्स स्विंग को प्ले में लाना है और आपने हॉरिजॉन्टली बैट्समैन की आई लाइन के साथ खेलना है। ये चीज उस वक्त आई थिंक समझ आती आएगी जब हम वन वन साइज फिट ऑल वाली माइंडसेट से निकलेंगे। वसीम अकरम आई बिलीव इज ट्राइंग टू मेक और गिव मूसा द सेम बॉलिंग प्लान जो वो आमिर को दे रहा है या किसी और बॉलर को दे रहा है या फुलर जो प्लान लेकर आता है। तो इसलिए मूसा अभी तक वहां फंसा हुआ है कि ही हैजंट टेकन हिज गेम टू दैट नेक्स्ट लेवल। इंग्रेडिएंट्स सारे हैं, वी जस्ट डिस्कस इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बॉलिंग प्लान उसको वो दोगे जो उसके अल्लाह ताला ने उसको एक बायोमैकेनिकल एक एबिलिटी दी है एक तरीके से बॉल कराने की, तो उसमें वो सक्सेसफुल होगा। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, आई मीन आई कुड बी रॉन्ग, मैं कोई बॉलिंग कोच नहीं हूँ लेकिन राइट। मेरी मेरा मेरा ओपिनियन थोड़ा मुख्तलिफ है मूसा के बारे में। आई लाइक मूसा अलॉट एंड मुझे लगता है कि उसकी स्पेशलिटी है ना वो हैवी बॉल करना है, पटक के जो थोड़ा ऊंचा उठता है, ही कैन डू दैट। वो थोड़ा सा आगे गिरा के स्विंग करने में जो वकार भाई करते थे या मलिंगा करता था उसकी स्ट्रेंथ पे नहीं आता, प्रॉब्ली ही डजंट स्विंग एज मच एज सम ऑफ द अदर पेसर्स एंड उसकी आई थिंक उसकी यूजेज भी वो नहीं है ना, कराची ने जिसको यूज किया वो बैक एंड पे आया, आमिर दोनों ने अटैक किया, फिर मूसा उसके बाद आया। एंड मूसा की स्पेशलिटी वहां नजर आई थी जहां उसने नवाज को फंसाया, बड़ी जबरदस्त बॉल थी, वो एकदम चढ़ के उसके ऊपर आई। प्रॉब्लम मूसा के साथ मुझे एक लगती है उसका कंट्रोल थोड़ा कम है, स्प्रेइंग अराउंड ज्यादा है, बॉल आगे भी कर रहा है, बॉल पीछे भी कर रहा है, लाइंस भी मिस हो रही हैं। ही हैज टू प्रॉब्ली स्टिक to some of the plans that Harris Rauf bowls. He's a similar, मेरे हिसाब से he's a similar kind of bowler जो middle phase enforcer के तौर पर काम आ सकता है, बीच में थोड़ा हैवी बॉल कर सकता है, पटक सकता है। तो वहां हारिस रऊफ लाइक शुरू में हारिस भी पिटता था, पर हारिस हैज इम्प्रूव्ड हिज गेम एंड उसकी जो स्ट्रेटजीज है, अगर मूसा थोड़ा सा उस पर चलेगा तो प्रॉब्ली ज्यादा मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है कि काम रहेगा। आई थिंक मूसा जो है वो वही करने जा रहा है जो बेसिकली टेम्पलेट हारिस वगैरह का है, राइट। टू मच स्प्रेइंग अराउंड। उसने नवाज को एक स्लोअर बॉल किया बिल्कुल आर्क में ना, उसको चौका जो दो चौके मारे नवाज ने उसको बिल्कुल एक आर्क में उसने स्लो बॉल की, अच्छा आइडिया था लेकिन उसकी लेंथ बड़ी खराब थी। आर्क में वो फंसता इसलिए कंट्रोल में क्योंकि उसको मेरे हिसाब से, दिस इज माय ओपिनियन, उसको आप प्लान किसी और बॉलर के फ्रेमवर्क का दे रहे हो जो कि उसको नेचुरली नहीं फिट करता। क्योंकि बॉलर जो है ना वो एक तरीके से उसकी बॉडी मूव होती है, साइड पे जाती है, हाथ ऊपर से आता है, उसका लोडअप अलग तरीके का होता है, रन अप अलग तरीके का होता है। तो इन लाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स माय ओपिनियन इज कि मूसा को प्लान आपने एक थोड़ा सा हट के देना है। उसको वो अगर बैंगल वाली आप प्लान देते रहोगे तो वो फंसता रहेगा उसमें, क्योंकि उसकी मैकेनिक्स इस तरह के नहीं है कि वो वाली लेंथ करा सके, तभी वो स्प्रे अराउंड करता है। आप उसको अगर ये बोल दो ना मूसा मुझे वाइड यॉर्कर चाहिए, 6 बॉल है वाइड यॉर्कर बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऑफ स्टंप की बाहर मुझे 6 यॉर्कर चाहिए, दैट्स इट। आप देखो मूसा अलग ही बॉलर बन जाएगा एज फार एज आई कैन टेल। बाकी आई थिंक कि या उसके कंट्रोल में थोड़ा इश्यू है, उसको काम करना चाहिए, स्विंग पे थोड़ा उसको काम करना चाहिए क्योंकि उसकी रिस्ट जो है वो बॉल के पीछे सही नहीं आती है, उसका मतलब ब्रेक हो रहा होता है रिस्ट। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं उसमें। वाइड यॉर्कर आई थिंक आमिर बहुत अच्छी कर रहा है वाइड यॉर्कर। आई थिंक उसका डेथ में प्लान ही यही होता है, वो वाइड यॉर्कर्स पे लेकिन उसकी वाइड यॉर्कर पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी, मतलब ही नोज वे टू लैंड। रन पड़ते हैं ऑब्वियसली, डेथ में रन पड़ जाते हैं, बट उसका प्लान मुझे ये अच्छा लगता है कि ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, और रेंज से बाहर निकलता है, उसकी लेंथ बड़ी अच्छी होती है यॉर्कर की, उसका अंडर आना बड़ा मुश्किल होता है, लैप करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ ही हैज अ प्लान, हाँ ही ऑलवेज हैज अ प्लान। कैच बनाने की कोशिश कर रहा था, ट्रू, एक गैप में निकल गया, एक फेल शॉर्ट एंड देन आई मीन यही मोमेंट। आमिर का अगर आपको सुपर ओवर याद हो 2 साल 3 साल पहले वाला, वो सुपर ओवर भी बिल्कुल लाइन के पास सारी बॉलें निकाली थी, उसका स्क्रीनशॉट पड़ा होगा शायद, मैं निकालूंगा, वो बिल्कुल लाइन के करीब उसने बॉल की है सारी। बिल्कुल सही बात। आमिर बैक देन वाज अ डिफरेंट आई थिंक बॉलर। अभी आई थिंक उसका स्किल थोड़ा सा डिमिनिश हो गया है विद टाइम, लेकिन उस जमाने में
I personally think आमिर का ये सीजन पिछले 2 सीजन से कंपैरेटिवली इस सीजन में कुछ लाइक कम बैक करता है, उसका पेस थोड़ा ऊपर आया है, तो स्विंग नजर आ रहा है, पावर प्ले विकेट्स भी आ रही हैं, डेथ में भी ओके, मतलब he has done like comparatively better than what he's been doing in the last 2 years ना, कुछ बेहतरी पर आपको नजर आ गई पिछला सीजन तो उसने खेला ही नहीं था, वो तो इंजर्ड था पूरा सीजन। पूरा लाइक सीजन इन द रीसेंट पास जो हमने उसकी परफॉर्मेंसेस, मेरा मकसद ये था कि इतनी ओह ओके क्वालिटी ओके, आपको हाँ आमिर की बॉलिंग में नजर नहीं आ हाँ रही नहीं, हाँ, और दिस सीजन ही लुक्स इस दफा बेटर। एक और चीज है, पेस पेस भी नजर आया, दूसरा स्विंग हाँ वापस नजर आई है इसकी। ट्रू स्पेशली ट्रू, वो मैं आई एक कैन और चीज कट रही कहूंगा, ऑन रावलपिंडीज पिचेस बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आया है। कराची में उसने शुरू में सही ओवर्स निकाले, असल जो जो उसकी बॉलिंग में मूव नजर आया वो रावलपिंडी की पिचेस में नजर आया। Yeah. राइट। एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कोयटा के हवाले से। कोयटा इज नॉट प्लेइंग विद हसनैन हु इज लाइक अ मेजर कंपोनेंट ऑफ देयर बॉलिंग, राइट। और हसनैन जो है वो उनका मतलब कोर का हिस्सा है नसीम के साथ। सो लाइक गोइंग फॉरवर्ड डू यू थिंक कि क्योंकि आज जीते हैं ये मैच, राइट, तो अगर हसनैन फिट होता है तो लाइक व्हाट डू कोयटा डू, हु सिट्स आउट, गिवन के सरफराज की उंगली में भी लग गई है अब, तो लाइक अगर आप एक इस तरह का आउट एंड आउट पेसर डालोगे, आई होप सरफराज इज मतलब उसकी उंगली में ज्यादा चोट ना आई हो, बट लेकिन अगर सरफराज इज नॉट प्लेइंग फॉर मतलब इंजरी की वजह से और हसनैन आता है तो हु कीप्स, बिकॉज आई थिंक कोयटा यहाँ पे थोड़ा फंस रही है क्योंकि आज उमर अकमल से उन्होंने कीपिंग करवाई थी। तो हसान भाई, इफ यू कैन स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद Yeah, कोयटा। I would want, and I like it would be great to see Hasnan bowling with Naseem and Amal. We forgot, but Amal did fairly well today. या Ball with good pace, 2 for बहुत 26. जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त। जबरदस्त। I mean, despite whatever shenanigans are around his age, at the end of the day, it matters what kind of cricket he's playing, and seems to be playing good cricket. I mean, दूसरा मैच था उसका जिसमें उसने विकेट्स लिए एंड ऑल। आई थिंक नवीनुल हक की जगह पॉसिबली हसनैन को ट्राई किया जा सकता है जस्ट टू मेक दैट कॉम्बो, बिकॉज आई थिंक प्रिटोरियस और नवाज डिड फेयरली वेल टुडे, उसमें थोड़े से इश्यूज हैं। I think Sana Mir ने बहुत अच्छा point on air. I don't know if you guys heard it, but they were talking about his action जहाँ पे जो ये pivot करते हैं ना अपने while bowling during his bowling action, वो pivot उसका उनको कम लगा और non bowling arm को भी वो block कर रहा है, वो completely use नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो spinner का कहते हैं ना कि जिस पाँव पे वो pivot करता है, he should like dig up the pitch from there a little bit. वो वाली चीज नहीं कर रहा, इंस्टेड ऑफ रोलिंग हिज फीट ही इज गोइंग ओवर हिज फुट, जिसकी वजह से उसको वो वाली टर्न नहीं मिल रही। सो टेक्निकलिटीज थी, दे वर डिस्कसिंग इट ऑन एयर एंड देन दे शोड द रिप्ले एंड इट सीम्स टू बी द इशू। पहले ऐसे नहीं था, पहले इसको टर्न ज्यादा मिलती थी, थोड़ा सा कंडीशंस का भी मामला हो सकता है जिसकी वजह से उसने अपना शायद थोड़ा सा रीडू किया हो एक्शन भी या काइंड ऑफ बॉलिंग दैट ही इज डूइंग एज वेल, बट हैविंग सेड दैट ही स्टिल वेंट फॉर ओनली 1 for 22। तो आई थिंक बॉलिंग में नबी की जगह हसनैन को ले आए, दैट वुड बी गुड। एज फार एज द बैटिंग इज कंसर्न, थोड़ा सा आज मुझे बेहतर लगा विद प्रिटोरियस कमिंग इन एंड उमर अकमल बैटिंग स्लाइटली हायर, इफ्तिखार बैटिंग स्लाइटली हायर, तो आई थिंक जस्ट दैट वन चेंज शुड बी प्रीटी डिसेंट। आई डोंट नो सोहेब का शायद इस पे कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जो है आई वांट टू कवर के बीच में ना मैच के साइमन डोल वाज लाइक कमेंटेटिंग एंड एमल वाज बॉलिंग, और एमल 2-3 ओवर्स में कोई उसने 12 रन दिए थे और उसके बाद उसे कोई 24 रन बने एक ओवर में, राइट, सॉरी 18 या 20, बट आई कांट रिमेंबर द रन्स इन द ओवर, बट Simon Dole came and said ke Sarfaraz is not doing anything and he's just standing there and that's basically not good enough, right? And he had a go at Sarfaraz for his captaincy. Do you, if I want to expand ke do you think that was like justified call by Simon? क्योंकि अब ये हर मैच में हो रहा है कि वो कोई ना कोई एक प्लेयर को उड़ाता है ऑन एयर एकदम completely, right? तो ये चीज do you think is like theatrics on the part of Simon, or is it something कि वो like he has that neon stake कि वो जब कॉल करता है तो exactly उसी तरह हो रही होती। Secondly, my second point of discussion would be कि इमाद की आज कैप्टनसी, how do you look at it? क्योंकि के like had the game at 5 down, but then they lost it from there.
So if you can just have a quick word on it. Yeah, like I won't say Simon Dole has something like theatrics तो नहीं कहूँगा मैं उसको, but he is commentating, उसके पास एक opinion होता है, उसको share कर देता है, so I don't mind that, but I couldn't agree with that point उस वक्त मैं सुन रहा था, मतलब sometimes like मेरा opinion आएगा तो लोग कहेंगे शायद bias people know that I like Sarfaraz a lot, but sometimes I think कि PSL में खास तौर पे there is a lot of scrutiny on Sarfaraz. There's a lot of talk on Sarfaraz, which is sometimes unnecessary as well. मतलब आप फुलर को कितने 24 रन पड़ गए, तो आपने कितनी दफा इमाद को जाके उससे बात करते देखा. इस तरह की और भी एग्जाम्पल्स. आई मीन अगेन एमल इज अ यंगस्टर बट ही वाज बॉलिंग वेल, एंड मेरे हिसाब से मैं उस वक्त ये सोच रहा था अभी सरफराज भागता हुआ एमल के पास जाता तो कमेंट्री पे ये बात हो रही होती कि दिस इज नॉट व्हाट अ बॉलर वांट्स, लीव हिम अलोन, और अभी वो इतना पिटा है एंड वो एक फेज में है एंड लेट हिम बी इन हिज जोन और स्पेस. मुझे लग रहा था कि अगर अभी सरफराज भागता हो जाएगा तभी उसको ये अच्छी नहीं. सो आई थिंक आमिर समटाइम्स वाला मेल्टडाउन अगर सरफराज कर देता तो फिर ट्विटर वुड हैव ब्लोन अप, जो आमिर का जिस तरह का मेल्टडाउन हुआ था. ट्रू. हाँ ट्रू. That was हाँ आई a थिंक very दिस bad meltdown. Like there is too much scrutiny on Sarfaraz कि वो एक चौका करता है, there is camera on Sarfaraz कि मुंह तो नहीं बना yes, रहा, he is not happy and all, but हाँ, like leave him alone ना, leave him alone. It's a game, field पे हजार तरह की चीजें होती हैं, हजार तरह के emotions होते हैं, हजार तरह के जो है expressions होते हैं. You don't have to like focus on everything on, and it goes out for everyone, like हर किसी पे. I remember there was a match, Pakistan का match, and Baba lost his cool on someone, and I tweeted कि भाई देखो Baba Baba, हारिस पे हाँ, Baba lost his cool. People are learning कि कैप्टन को गुस्सा आ जाता है, and someone came on to me कि ओ जी आप racist और ये और कराची के और. I'm saying I didn't criticize Babar. I am saying here कि this is how cricket is played, जहाँ कैप्टन सुना भी देता है, कैप्टन को गुस्सा भी आता है. This is how game on the field is, भाई. So I think it's फजूल की जो है वो एक फोकस है इस चीज का. I don't think it mattered a lot. And the second thing, about the keeping, I don't think they have another keeper in their squad, sadly. So या तो वो किसी को ड्राफ्ट इन करेंगे अगर सरफराज लाइक दोनों मैचेस से आउट हो गया है तो, या फिर ऑब्वियसली दे विल गो विद उमर अकमल. और इमाद की हसनैन कैप्टनसी. इमाद की कैप्टनसी यार, लाइक देयर इज नॉट, यू कांट टॉक अबाउट इट मच बिकॉज ज्यादा आधे से ज्यादा गेम तो मलिक कर रहा था. तो एंड में जो है वो एंड में इमाद था. आई मीन देयर वर a few overs left, वो एक ऑटोमेटेड जो चॉइसेस थी बॉलिंग की, यू कांट रियली जज ऑन हिम बिकॉज उसमें कैचेस भी ड्रॉप हुए, उसमें मिसफील्ड भी वगैरह हुई. तो आई Do you think थिंक आज he should have like उसने शम्सी को 4 एकदम डायरेक्ट करवाए on the trot, right? So do you think he हाँ should have kept 1 or 2 थोड़ी देर बाद के लिए, like बीच में वो अपने वीक बॉलर को निकलवाता, जैसे वो था क्या नाम है. गप्टिल को वो आउट करने वाला था. हाँ आई थिंक पॉइंट यही था कि इफ यू टेक गप्टिल यू टेक द गेम. सही. तो हम हमेशा ये बात, अभी इस बात पे भी सरफराज पे भी बहुत क्रिटिसिज्म हो चुका है कि इफ यू हैव टेकन दैट मच विकेट्स यू ब्रिंग ऑन योर ए क्वालिटी बॉलर्स एंड देन यू लाइक फिनिश द गेम देन एंड देयर. तो आई थिंक दे ट्राई टू डू दैट कि गप्टिल की अगर विकेट इनको मिल जाए तो गेम खत्म हो जाएगा, जो कि नहीं हो पाया. बट आई थिंक it was an okay move, इसमें कोई मसले की बात नहीं थी. हसनैन का ये, आई थिंक हसनैन अगेन हसन भाई said कि probably नदीम शायद ज्यादा suited है to give him place, but I think it will be Emil. Sadly again Emil played well. नवीन की वैल्यू मुझे लगता है कोयटा को ज्यादा लगती है. दे ट्रस्ट हिम वेल, दे ट्रस्ट हिम. मैं ये नहीं कह रहा कि क्या होना चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे लगता है क्या होगा. आई थिंक नवीन विल प्ले एंड एमल बैठेगा, एंड आई थिंक दे विल go back to Yasir Khan or Bangalze instead of Umair. Right. Okay, so now I'm gonna come to Gibran bhai, and like myself, Gibran bhai is also a KK fan. So I mean, Gibran bhai, for all sense and purposes, जो है सीजन ओवर हो चुका है हमारे लिए, राइट. केके के लिए ऑलमोस्ट मतलब राइटिंग ऑन द वॉल है, राइट. पिछले सीजन केके वन 1 गेम एंड प्लेड 10, दे लॉस्ट 9. इस सीजन अगर ट्रेंड जिस तरह जा रहा है तो केके वुड लूज 8 गेम्स एंड विन 2. नाउ दिस हैज हैपेंड ट्वाइस इन 2 years कि केके ने जो है ड्राफ्ट्स जो पर्सनल लिया है वो ड्राफ्ट्स में वो कंप्लीटली वाजंट अप टू पार, वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सका, उनकी सीलिंग बहुत कम थी. डू यू थिंक कराची किंग्स नाउ नीड लाइक अ वेरी हार्ड रीबूट
from like not only the players but from the management, from people like Wasim Akram, from their backend support staff, and get people who actually are like involved in like data centric thoda ho and make decisions that have cricketing logic rather than कि किसी प्लेयर को ले रहे हैं ऑन जिसे कहते हैं रेपुटेशन. जैसे इमरान ताहिर को उन्होंने लिया, दैट वाज अ वेस्टेड प्लेटिनम पिक बेसिकली. उसने आप पूरा सीजन कुछ नहीं किया, राइट? दे वेस्टेड दैट पिक. इसी तरह हैदर didn't translate to what he was. So do you think they need a hard reset going in PSL 9? And if they do, how would you go about doing it? Like retentions में and draft आपकी जो thought process होगा क्या होगा? If you can very quickly touch on that, तो उसके बाद फिर हम वो कर लेते हैं prediction. देखिए रिबूट यस, इस साल भी मैं अगर देखूं तो इस इंटेंशन मुझे नज़र आई कि इस साल भी दे वांटेड अ रिबूट. उन्होंने अप्रोच चेंज करने की कोशिश की, लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, डेटा को यूज़ करने की कोशिश की. सो क्योंकि पिछला सीज़न ऑब्वियसली इट वाज अ वेकअप कॉल. 10 में से 9 हार जाना प्रॉब्लम था. दूसरा है कि प्लेयर्स की इंजरीज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और दीगर इशूज़ थे. तो 10 में से 9 हारना इज़ अ ह्यूज थिंग. इसके बाद आई फेल्ट दे वांटेड टू रिबूट. लेकिन देखिए रिबूट में एक दो चीज़ें आपको जो है ना वो एक या दो चीज़ें आपको रोक सकती हैं. आपकी रिटेंशन लिस्ट बहुत या तो अगर आपको रिबूट की बात करें ना तो फिर आपको मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स रिलीज करना चाहिए और स्क्वाड अपना न्यू बनाना चाहिए. सेम हैपेंड विद मुल्तान सुल्तान. जब वो नई टीम बनी थी तो उनको पहली दफ़ा जो पूल मिला था वो सारे रिलीज प्लेयर रिलीज रिजेक्ट. हाँ यस सही. तो उसमें पहला सीजन मुल्तान के लिए अच्छा नहीं था. उन्होंने संगाकारा को उठाना पड़ा एंड आई थिंक पोलार्ड को उठाना पड़ा. जो प्लेयर्स रिलीज थे उनको उठा के टीम बनानी थी, उनके लिए प्रॉब्लम था. नेक्स्ट है उन्होंने अपनी रिटेंशन खोली, ज़्यादातर प्लेयर रिलीज किया और एक नया स्क्वाड बनाना शुरू किया. तो आई थिंक के को भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि अगर आपको पॉलिसी उनके पास है कि आपको नॉन रिटेन नहीं करना, आप 4 से 5 रिटेन कर सकते हैं. आप 4 से 5 की प्लेयर्स रिटेन करें और अपना स्क्वाड बिल्कुल नए तरीके से बनाने की कोशिश करें. उससे 2-3 चीज़ें होंगी. हो सकता है कोई प्लेयर इनके पास प्रॉब्लम हो रही हो दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए प्रॉब्लम हो तो इनके लिए अच्छा हो सकता है. तो एक नया मिक्स बन सकता है. दूसरी चीज़ ट्रेंड्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो अभी तक के सारे सीजन्स की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक आपका फॉरेन टॉप ऑर्डर ही कामयाब रहा है. ये आपको ट्रेंड्स बताते हैं, नंबर्स भी बताते हैं और इम्पैक्टफुल भी रहा है. उसमें चाहे आप वॉश्ड आउट प्लेयर्स जो लोग कहते हैं उनको ले लें, आप ल्यूब्रॉन्की को ले लें, केविन पीटरसन को ले लें, जितना भी आप टॉप एंड मिडिल ले लें वो फॉरेन ही कामयाब रहा है. तो आई थिंक के नाउ इट्स टाइम कि उनको भी अपना जो टॉप ऑर्डर है वो फॉरेन बनाना पड़ेगा और अच्छे प्लेयर्स के साथ बनाना पड़ेगा. क्योंकि बाबर और शर्जील के होते हुए ऑब्वियसली इनके पास एक प्रॉब्लम ये था कि दे वांटेड टू रिटेन देम इन ऑल सीजन्स. लगातार 3 से 4 सीजन साथ खेले इन्होंने. बीच में एलेक्स सेल्स भी आया, बीच में जो क्लार्क भी आया, लेकिन आपको जो ओपनर्स थे वो यही 2 रहे थे. तो आई थिंक ये एक चांस है कि शर्जील को भी आप रिलीज़ करें, एक नया टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से बनाएं और वो उसमें ज़्यादा फॉरेन इंक्लूजन जो है वो करने की कोशिश करें. फिर एक चीज़ और वो फंसेगी, मैंने इस पर बात की थी तो उस पर काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मुझे आया था. ऑर्डर पिक्स बहुत मैटर करती हैं. ऑब्वियसली दे मेड ब्लंडर्स इन पिक्स, लेकिन जिस किस्म की इनको ऑर्डर पिक्स मिली थी बहुत सारे प्लेयर्स इनसे इस वजह से भी मिस हो गए थे कि इनकी पिक्स जो है वो नहीं थी. इनको सिर्फ एक पिक जो है वो पहली मिली थी, दैट वाज इन सिल्वर. दैट मैटर्स. बहुत सारे इश्यूज थे. देखिए मैं कहूँगा कि जैसे वेट की उन्होंने पिक कर ली, वेट से पहले अगर चाहते तो 1-2 प्लेयर्स और थे. बहुत ज़्यादा बड़ा आपके पास पूल नहीं है. एक जब आपके पास लिमिटेड पूल होता है तो उसमें आपको प्लेयर्स शुरू में ही मिल जाने चाहिए. मुल्तान के पास आया, उन्होंने फॉरन मिलर पिक कर लिया, बाकी लोगों ने भी अपने पिक कर लिया. तो आई थिंक वो चीज़ बहुत हेल्प आउट करेगी उनके पास होती है. लेकिन मैं दोबारा वही एक और चीज़ कहूँगा कि इनको अपना रीसेट करने के लिए रिटेंशन अब जान छुड़ानी होगी शर्जील से और बाकी सारे. दे वांट टू रिटेन इमाद, दे वांट टू रिटेन इवन आमिर. मैं कहूँगा इंटरनेशनल के लिए नहीं, वो इनके लिए अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो चाहिए रिटेन हिम, लेकिन उसके साथ कोर अच्छा बनाए. क्योंकि अभी तक के मैचेस में मैं यही देखता आ रहा हूँ कि आमिर एक तरफ से रन रोकने की कोशिश कर रहा है और इस PSL में उसने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन दूसरे एंड से जो है रन लीक हो रहे हैं आखिरी के ओवर्स में. तो गो फॉर समवन विद रेड बॉलिंग.
तो आई थिंक एक कंप्लीट रीसेट के लिए ज्यादा प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ेगा, नया कोर बनाना पड़ेगा। इन माय ओपिनियन मैं तो ये समझता हूँ कि अभी जिब्रान मैंने बोला इमाद और आमिर को रिटेन कर लेना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है कि nobody gets retained. Like you completely clean slate से आप स्टार्ट करो, बिकॉज अगर आप आमिर और इमाद को रिटेन कर लोगे तो फिर मसला ये वही होगा कि यू नीड टू, अगर आपने जिनको रिटेन किया है उनको आपने टीम में खिलाना पड़ेगा, वरना रिटेंशन की कोई सेंस नहीं बनेगी, राइट। और अगर आपको वही क्रिकेटिंग जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो स्ट्रेटेजी, उससे हटना है तो आपने सबको भेज दें। हाँ ठीक है, इमाद का वापस ले लो उसके ड्राफ्ट में, लेकिन आप रिटेंशन में सबको क्लीन करो ताकि आपके पास एक क्लीन स्लेट हो, और उससे जो है वो आप आमिर के ऊपर सॉरी मैं बीच में एक बात करता हूँ, प्लीज कंटिन्यू करना। आमिर के ऊपर मैं बात करूंगा कि फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी उनमें बहुत कम है, और ये चीज कराची किंग्स को तब पेश आई जब उन्होंने उनको, क्योंकि देखें जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं सारे अच्छे फास्ट बॉलर रिटेन होंगे, ठीक है। अभी उनको जो है वो आकिफ पिक करना पड़ा, मूसा पिक करना पड़ा, नोबडी वर्क फॉर देम, मोहम्मद उमर। बिकॉज नो मैं ऐसी बहुत एग्जांपल ये देता हूँ क्योंकि क्रिकेट जो बहुत कराची की जो ड्राफ्ट हुई है ना, उसमें अनफॉर्चुनेटली, एंड आई नो पीपल आर गोना गेट पिस्ड एट दिस, बट लाइक जो ड्राफ्ट कर रहे थे ना वो साफ पता चल रहा था कि वो क्रिकेट नहीं देखते हैं। मैं आपको बहुत आसानी से बता देता हूं यहाँ पे कि अगर आप क्रिकेट नेशनल T20 और जो मेजर लीग्स हैं उनसे हट के देखो ना, तो देयर इज अ लॉट ऑफ फास्ट बॉलिंग पूल जहां से आप पिक कर सकते हो। एक नाम लूंगा यहाँ पे, एक यंग बंदा है, केपीके के ही है, ही यूज्ड टू प्ले इन क्रिकेट एसोसिएशन कप में अभी उसने खेला था, उसका नाम है आमिर हसन आफरीदी। आई डोंट नो इफ यू गाइस नो हिम और हैव हर्ड ऑफ हिम। ही इज अ लेफ्ट आर्म बॉलर, एग्जैक्टली शाहीन के मोल्ड में है। उसने ज्यादा गेम नहीं खेली है, लेकिन अगर कोई किसी ने उसको खेलते हुए देखा है ना, ही वुड बी लाइक कि यार ही हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स। तो ये अब मैं यहाँ मलेशिया में बैठ के कैसे पता है मुझे, मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, मैं मुझे आइडिया है कि ये लड़का आ रहा है। इसी तरह सेकंड नेम, आई डोंट सी मुजर रब्बानी प्लेइंग फॉर एनी फ्रेंचाइज राइट नाउ। मुजर रब्बानी नहीं खेल रहा, जिम्बाब्वे जो है he's injured। चलो वो इंजर्ड है। ताज वली केपीके का कोर जो है केपीके की टीम का है, जो उनकी चैंपियन बनी थी, ही इज एज एक्सपीरियंस्ड। 2018 में जब इस्लामाबाद जीती थी ना, तो उनका फास्ट बॉलिंग स्टॉक में कौन कैप्टन था? मोहम्मद शमी, राइट। आपने उस मोल्ड में ताज वली को आप यूज कर सकते हो यार। देयर आर लाइक मिलियन नेम्स। मैं सिर्फ टॉप ऑफ द हेड बता रहा हूँ अपने, राइट। मैं अगर बैठूं स्टेटिस्टिकली निकालने के लिए तो आई वुड हैव लिटरली 30 से ऊपर मैं बंदे इकट्ठे कर सकता हूँ। तो इट्स नॉट के रिसोर्सेज नहीं, द प्रॉब्लम है रिसोर्सेज आपके पास उस वक्त नहीं होंगे जब आप 3 दिन पहले ड्राफ्ट से लोगों को जमा करोगे और बोलोगे भाई मुझे ड्राफ्ट के लिए प्लेयर ला के। तो ऐसे नहीं होता। ये जितनी मुल्तान हो गई, इस्लामाबाद हो गई, इवन लाइक वो लाहौर हो गई, ये लोग 6-6 8-8 महीने से पीएसएल से मतलब जो वो होता है पीएसएल का जो मंथ होता है उससे पहले काम करना शुरू कर देते हैं, जो है प्लेयर डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं, मिलते हैं एजेंट से प्लेयर के, बात करते हैं, उन प्लान अपने शेयर करते हैं, एक पाथवे क्रिएट होता है। केके का मसला ये है कि वो चाहते हैं कि वो 3 दिन पहले जो है ड्राफ्ट के आए, सब बैठे, एक लिस्ट निकालें, उस लिस्ट से आप फिर पीएसएल जीत जाओगे। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। बहुत मतलब ये जो है आप चाह रहे हो कि आप मिरेकल क्रिएट कर दो, एक तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो वकास तुम ताजवली की बात करो, ताजवली की मुझे रीसेंट परफॉर्मेंसेस बताओ ना। रीसेंट 31 साल उसके, आप उसको ले लोगे, पहला कमेंट याद है कि यार 31 साल बंदे को आपने ले लिया यार। समी की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी यार। 2016 में जब समी ने वर्ल्ड कप में वॉच किया था इतना बड़ा, उसके बाद वो पीएसएल में खेला था और इस्लामाबाद ने उसको लिया था एंड दे वन विद हिम यार। इट्स नॉट जस्ट के स्टैट्स आप देख के बोलो यार, क्योंकि ना अगर आप एक्सेल पे टीम बना रहे हो तो फिर यार फिर मैं क्या बोलूं, राइट। एक्सेल की टीम मतलब यू आल्सो हैव टू लुक एट प्लेयर्स, यू आल्सो हैव टू सी कि उनकी सीलिंग कैपेसिटी क्या है। मैं सिर्फ एक नाम ले रहा हूं, मतलब उसके लिए एग्जांपल के तौर पे, राइट। मैं अभी बैठा तो क्यों ना, लाइक इफ आई गो एंड रन स्टैट तो फिर मुझे समझ में आ जाएगी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये परसेप्शन कि हमारे पास अगर इनको हम जाने देंगे तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये एक बड़ा ही जिसे कहते हैं ना मिस इन्फॉर्म तो नहीं, बट एक परसेप्शन बन गया है, या तो केके ने खुद बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पे सुहेब को आई थिंक पता होगी ज्यादा अच्छी। सुहेब, रैंडमाइजर जो होता है और जो पिक्स का ऑर्डर है, आई थिंक लास्ट टाइम हम लोग यही बात कर रहे थे, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है ट्विटर पे,
तो इफ यू कैन ब्रेक डाउन कि ये कैसे डिसाइड होता है व्यूअर्स के लिए हमारे, क्योंकि आई थिंक यू आर वेल वर्स्ड इन दैट अ बिट. आई थिंक मेरी रेहान से बात हुई थी और उसमें ये था कि द फर्स्ट पिक, जो पहली पिक होती है उसका ड्रॉ होता है, जो जिसकी भी निकले वो, और उसके बाद से दे हैव अ रैंडमाइजर, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एल्गोरिथम है, वो डिसाइड करता है पिक ऑर्डर. सो देयर इज नो लाइक ह्यूमन इंटरवेंशन इन इट, किसी की कोई वो नहीं है. वो एल्गोरिथम किस उस पे वर्क करता है क्या है, नो वन नोस. बट ऑल फ्रेंचाइजीज एंड द पीसीबी लाइक आर अलाइंड ऑन इट, और जो भी रिजल्ट उससे आता है देन एवरीबॉडी एग्रीज टू इट, तो फिर उस पे जाते हैं बस. आई जस्ट एक्चुअली पहली पिक जो है वो ड्रॉ पे होती है, और पहली पिक ज्यादातर लाहौर की आती है. मतलब रेहान वाज लाहौर लाइक की आती है. laughing while sharing it कि यार लाहौर is such a lucky side in that regard. एक चीज मैं यहाँ पे व्यूअर्स को बताते चलूं, द गाय हु एक्चुअली मेड द रैंडमाइजर, राइट, आई हैपन टू लिंक्डइन पे उसने एक पोस्ट लगाई थी जब उसने ये बनाया था. ही मेड दैट रैंडमाइजर स्क्रिप्ट ऑन पाइथन. सो आई बीइंग एन इंजीनियर, आई वाज लाइक कि यार कैन यू शेयर द गिटहब रिपोजिटरी विद मी एंड लाइक मैं देखूं कैसा बना है. एंड आगे से आंसर था कि सॉरी दिस इज कॉन्फिडेंशियल, एंड आई अंडरस्टूड दैट, राइट. वो एक नॉन डिस्क्लोजर एनडीए होता है जो आप नहीं शेयर कर सकते कोड, बट के जो फ्रेंचाइजेस है उनके साथ शेयर की है. आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड केके की साइड से कौन गया था और उसने कोड रिव्यू किया था उस रैंडमाइजर का, टू मेक आउट के जो है ये चीज एकदम सही तरह बनाई गई है, इसमें कोई बग नहीं है, इसका मॉडल अच्छी तरह ट्रेन हुआ है. तो ये चीज जो है मुझे, अगर केके की साइड से ये शो अगर कोई देख रहा है उसकी मैनेजमेंट से, तो प्लीज यू कैन ड्रॉप अस अ कमेंट और एन ईमेल कि ये कोड रिव्यू किसने किया था, टू फिगर आउट के वो जो रैंडमाइजर जिस सॉफ्टवेयर की सोहेब बात कर रहा है वो सही तरह बना हुआ था, उसमें किसी किस्म के ग्लिचेस तो नहीं थे, किसी किस्म का कोई जो है वो तो नहीं थे, बग्स तो नहीं थे. तो अगर किसी को उसके बारे में पता है तो या यू कैन कमेंट ऑन आवर स्ट्रीम और रीच आउट टू अस ऑन सोशल्स. अच्छा, एक अच्छा. चीज जो कराची की बॉलिंग में थ्रू आउट एक प्रॉब्लम नजर आई है, वो उनकी डेथ बॉलिंग की है. एंड डिस्पाइट दैट दे हैवंट वर्कड ऑन इट, हैवंट वर्कड ऑन गेटिंग अ बॉलर जो कि डेथ में अच्छा हो, डेथ बॉलिंग में उनको कंट्रोल दे. लाइक पावर प्ले में यू हैव आमिर, मोहम्मद आमिर, एंड देन यू हैव आमिर यामीन, जिसकी पावर प्ले में एटलीस्ट एफिशिएंसी है, लेकिन उसके बाद वो मार पड़ जाती है उसको. अच्छा, आप आमिर यामीन का कंपैरिजन आप हमेशा फहीम अशरफ से करते हो, एंड फहीम अशरफ जिस टीम में खेलता है वो इंतहाई बैटिंग के अलावा बॉलिंग डेप्थ भी रखती है. सो इफ फहीम अशरफ लाइक हैज अ बैड डे, जिसमें 2 ओवर करता है उसको थोड़ी मार पड़ जाती है, तो आप देखोगे प्रॉब्ली शायद कहीं ना कहीं उसको तीसरा ओवर ना मिले, या तीसरा मिल जाए तो चौथा ना मिले. मतलब दे हैव डेप्थ इन देयर बॉलिंग एज वेल. कराची किंग्स में आमिर यामीन भी वही रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन ही हैज टू बॉल 4 overs बिकॉज ही इज देयर लाइक सेकंड बेस्ट बॉलर कह लो, रिटेन होता है हमेशा. तो आई थिंक डेप्थ की भी जरूरत है. एंड आई थिंक दिस ईयर वाज परफेक्ट फॉर देम टू मेक अ न्यू कोर, टू मूव ऑन. He also underutilized his batting, by the way. मैं आमिर Yes. यामीन हाँ, यस यस, एग्जैक्टली बहुत एग्जैक्टली. underrated in my हाँ, अच्छा. मेरे अच्छा, I had like a few years back, I had a very random idea in my head, and I don't know statistically सही है नहीं, but I wanted, if I were like with a team, I would have taken a chance with Amir Yamin opening the innings, like for once send him up there, like Australia used to do with James Hopes, and they did it with Shane Watson, and I think Stuart Law ने भी किया है इस तरह. तो just take a chance ना, ऊपर भेज के देखो क्या करता है पावर प्ले, कितना नारायण यूटिलाइज करता है. हाँ, तो नारायण. ओपनिंग पे ना भी भेजें, आई थिंक नंबर 3 नंबर 4 पे कैन डू. हाँ, आपको यूटिलाइज अगर कर सकते. यार नेशनल मुझे वाला तो मैच याद हो, सोहेब मकसूद वाला, जिसमें हाँ. सोहेब मकसूद ने हाँ 13 ओवर में टारगेट रीच किया, उसमें बाद में तीसरे या चौथे नंबर पे आके आमिर यामीन ने मारा. हाँ, ट्रू ट्रू. ऊपर यार एकदम एक चीज मुझे याद है 2012-13 में जब रजाक वाज ऑन हिज लास्ट लेग्स, राइट, तो 2 नाम मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत फ्लोट किए जाते थे, और वो दोनों जो हैं they couldn't realize their true potential. One was Hamad Azam and the other guy was Amir Yamin, right? And उस वक्त ऐसा लगता था कि यार रजाक तो जो है बस अब रजाक प्रो मैक्स हमें मिलने जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ these two.
और 6 महीने बाद बिलावल भट्टी एंड अनवर अली डेब्यू फॉर पाकिस्तान. अच्छा, हमाद आजम आई थिंक One could have been. fun fact: Amir Yamin averages 95 in ODIs with a strike rate of 98. ये अलग बात है कि उसने 3 इनिंग्स खेली हैं, बट उसके बाद वो ओडीआई में कभी सिलेक्ट ही नहीं हुआ. खेला नहीं, हाँ खेला नहीं. यार अब्दुल रज़ाक एक टेम्पलेट था जिसको हम बनाने की कोशिश करते रहे. तो उसमें जैसा आपने कहा ना, हम्माद आजम की बहुत ज़्यादा शोर शराबत है कि हम्माद आजम आ रहा है, अगला रज़ाक आ रहा है, उसके बाद फिर आमिर यामीन का नाम आया, फिर अनवर अली, बिलावल भुट्टी का नाम. मैं एक और चीज़ बता, बल्कि बीच में हमने उमर अमीन को भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की थी. शुरू में जो चांसेस मिले हैं बिफोर हिज रिडेम्पशन एज अ बैट्समैन, उमर अमीन लेटर इम्प्रूव्ड एज अ बैट्समैन, बट हमने शुरू में जो उसको इंटरनेशनल में चांसेस दिए, हमने उसको नंबर 7 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे दिए और उसने बॉलिंग करवाई. सो ये टेम्पलेट यार उसने अम्माद भट्ट है हमारे पास अभी. अम्माद भट्ट के साथ भी यही कुछ मामलात हैं, और उसके बाद फिर फहीम अशरफ और फिर एंड सो ऑन. अच्छा, हम्माद आजम जो है ना, आई ऑलवेज फील कि जो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर इस्लामाबाद के लिए जाके खेलता है ना, दैट गाय समहाउ मेक्स इट इनटू द टीम. और बाकी जो यूटिलाइजेशन उनकी जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है ना अपनी फ्रेंचाइज में, वो प्लेयर की एफिशिएंसी आपको निकाल के दिखाती है और आपको लगता है यार ये इंटरनेशनल मटेरियल है. लेकिन जब इंटरनेशनल में आता है उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं होता, या उस हिसाब से फिर गेम ऑब्वियसली जितना पीएसएल का एक क्वालिटी हो जाए इंटरनेशनल से कम ही है, थोड़ा वहां भी मसले मसाइल आते हैं, तो ये फर्क आता है. अच्छा, हम्माद आजम आई थिंक हम sort of अब्दुल रज़ाक अगर मेमो की तरफ जाते थे, he was more of a Paul Collingwood. अगर हम उस रोल में कहीं उसको इस्तेमाल किया होता, लाइक कभी कभी बॉलिंग, या रवि बोपारा, डिमिट्री मैस्केरेनस टाइप ऑलराउंडर था वो, who could hit and who could ball a few overs here and there. Alright, अच्छा guys, जो है we have to go at hashtag. Sorry जिब्रान भाई, you continue. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इन सब में आई थिंक अनवर अली एक ऐसा रिसोर्स था जो साथ साथ इक्वली ही वाज अ गुड बॉलर और इक्वली उतना अच्छा बैट्समैन था, बट उसके फेजेस रहे अफरीदी की तरह, कहीं वो अच्छा बॉलर रहे, कहीं वो अच्छा बैट्समैन रहे. यार अनवर अली ने जब से केन विलियमसन को बोल्ड मारा था ना, मैं उस दिन से उसका सबसे बड़ा फैन हो गया था. अनवर अली ने जो यार ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, लाइक लोअर ऑर्डर बहुत अच्छा हिटर है. हम आई थिंक मुझे एज अ बैट्समैन भी खिला सकते हैं, जो इधर उधर 2 ओवर कर ले. जो यार मुल्तान 4 ओवर करवा रहा है, उसको अंडर 30 जा रहा है वो, मतलब मुल्तान के पास जादू है. आई डोंट नो हाउ दे डू इट. जब तक वो एक फनी यहाँ पे इंसिडेंट बताऊंगा अनवर अली का. मैं जो है केएल में रहता था उस टाइम पे, और वो जो उसने श्रीलंका की इनिंग नहीं खेली थी एक, राइट, तो उस वक्त 70 कुछ में 5 आउट हो गए थे, उन्होंने अनवर को भेजा. तो हम लोग एक उस पे देख रहे थे, क्या कहते हैं, बड़ी सी स्क्रीन पे देख रहे थे रेस्टोरेंट पे बैठ के. तो मेरे पीछे मेरा एक दोस्त खड़ा हुआ था, और जैसे ही अनवर वॉक्स इन, कहता यार ये आ गया क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, राइट. और मेरी समझ नहीं आया कि क्यों बोल रहा है, राइट. और उसके बाद मैंने अनवर को बैटिंग करते हुए देखा, और वो लिटरली जो है ना, ऐसा लगता था कि जैसे बैठ जा रहा था, लेग पे ब्लॉक करता था. रेसिपी फॉर पावर हिटिंग, जो क्राउच करते हैं ना, आप देखें समवन लाइक आंड्रे रसल, ही डज दैट रियली वेल. जो था ना आंड्रे रसल का, he used to get under the ball by crouching in मतलब हाँ कह सकते हैं, बट इवन हाशिम आमला जो है, he is not a power hitter but he used to crouch a lot. यार अपने सैफी भाई का क्राउच बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पावर हिटर नहीं है. यार सैफी भाई की जो बेस्ट इनिंग है ना, वो शारजा में आई थी जब उन्होंने 48 बनाया था. वो 2015 की ओडीआई सेंचुरी भी थी एक वर्ल्ड कप. यार आई मीन वो वर्ल्ड कप की सेंचुरी बहुत मारा था. आई थिंक सैफी भाई की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में जो इनिंग थी ना, पेसर्स को स्वीप मार रहा है, मतलब अलग ही कहानी चल रही है. यार आई हैव नेवर सीन एनी टीम डोमिनेट अ 2-मैच सीरीज लाइक हाउ वी डोमिनेटेड ऑस्ट्रेलिया इन दैट 2-मैच सीरीज. मतलब हर बंदे ने आके पेला था ऑस्ट्रेलिया को. बॉलर उनका, मतलब स्मिथ को बॉलिंग दी और मिसबाह रख के मार रहा ना, एंड worst batsman from our side was
Asa Shafiq, he was averaging 83 in that test. अफसोस बहुत हो रहा था बॉलिंग मुझे लाइनअप अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया के भाई, लिए। उसमें स्टार्ट भी था। बहुत है। बहुत मारा। अच्छा यार, गाइस वी नीड टू डू द, पहले प्रेडिक्शन कर लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद हैशटैग पे आते हैं। तो कल जो है वो, अल्लाह भला करे, आगे किसका गेम है? कल डबल हेडर है बाय द वे। पहला गेम है ट्यूसडे डबल हेडर है भाई, सलाम है पीएसएल को। ओके ओके, मुझे लगा मैंने गलत पढ़ दिया है। नहीं नहीं। तो जो है कल डबल हेडर है। पिशावर पहला गेम है 2 बजे पाकिस्तान टाइम, पिशावर जर्मी लाहौर कलंदर्स। जिब्रान भाई, हु इज विनिंग दैट गेम लाहौर कंसिडरिंग आप कलंदर, कराची? लाहौर लाहौर कलंदर्स। कलंदर्स। 100%। सोहेब, लाहौर कलंदर्स। हसन। Yeah, logic says Lahore Qalandars, but if they can see off Shaheen's opening spell now, I've been waiting for that special innings from the top three of Peshawar's early. I want one of Haris slash Sam slash Babar to do well. I'm tilting towards Haris again. I know I've said this before, but थोड़ा सा मैं unconventional जाऊंगा. मैं कहूँगा अगर ये see off कर लेते हैं ना opening burst शाहीन का, it could be यार something. देखो, देखो इस्लामाबादियों को देखो यार, उनकी टीम पहुंच गई है फाइनल, मतलब क्वालिफायर खेल रहे हैं लोग। लाइक उसके बावजूद भी मतलब जो है दूसरों की होप्स एंड ड्रीम्स पे जो है वो। भाई मैं शफकत कहता नहीं हूँ है ना यहाँ पे इसलिए। मैं कहता हूँ अगर पेशावर कल शाहीन का ओपनिंग बस गुजार ले और थोड़ा जमान के ओवर गुजारने के बाद मिडिल ओवर में राशिद और हारिस को सी ऑफ कर ले और थोड़ा बहुत वीजे को भी देख लेना तो शायद जीत जाए। गुड पॉइंट। यार एक विन ऐसा ना, है। एक, हाँ एक विन देखो वो, अभी अभी तक, अभी 2 घंटे पीछे चले जाओ ना, ये रो रहा था। Yeah, well, like it's a point to Lahore ना, मतलब amazing bowling lineup यार। राइट। अच्छा, नेक्स्ट गेम इज 7 बजे, इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान। जिब्रान भाई, हु इज विनिंग दैट वन? मुल्तान। मुल्तान। टिम डेविड की 50 आ रही है। मुल्तान, I'm tilting towards मुल्तान। हसान भाई? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। राइट, माय प्रेडिक्शन फॉर बोथ गेम्स इज कि पिशावर जलमी लाहौर में लाहौर जीत रहा है, और इस्लामाबाद मुल्तान का गेम के लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल है, तो आई विल गो विद इस्लामाबाद बिकॉज आई थिंक, नो आई विल गो विद मुल्तान बाय द वे। या क्यों? आई विल गो विद मुल्तान, ये क्या इसलिए बात है? अब मैं, अच्छा सुनो इसकी लॉजिक सुनो। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन इस्लामाबाद, बट यार वो लोग चेज बड़े ही अजीब तरीके से करते हैं। लाइक वो लोग अच्छा शुरू में खेलते हैं, दे मेक इट रन अ बॉल, एंड देन दे कंप्लीटली लाइक लूज इट। लाइक आपका रन अ बॉल ये अगर आ आदम गया, पॉइंट। हाँ। हाँ हाँ, अगर रन बॉल आ गया है, तो भाई नॉर्मल खेल के जीत जाओ, वो उस पे भी आई पूरा थिंक गेम फंसा देते दो हैं। आई डोंट नो व्हाट्स दो गोइंग ऑन देयर। दो मैचों में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। जनरली इस्लामाबाद यूनाइटेड इज अ वेरी कैलकुलेटेड साइड, उनको जो करना होता है वो करते हैं, पर 2 मैचों में वो अपने प्लेयर्स को बैट करा रहे हैं, जो कि शादाब ने कहा भी कि फर्स्ट में पिछले में उन्होंने फहीम को बैट कराया तो उसको बैटिंग नहीं मिल रही थी। जनरली यू डोंट सी दिस फ्रॉम इस्लामाबाद, जिसको भेजना है उसको भेजते हैं, गेम खत्म करते बाय हैं। द और वे, बाय द वे, पिछले मैच में सॉरी यार हाँ मैं बात काटूं, हाँ बट sure। इस्लामाबाद की बात हो रही है, बट so we know Rizwan is number 1 in the top run charts in PSL and Imad is number 2. Guess who number 3 is? It was वो वो था, आई सॉ इट टुडे। कप्तान है ना? नहीं गप्टिल नहीं था, इट माइट बी गप्टिल नाउ, इट वाज रोसो था आई थिंक। तो सो आजम आजम फारवा खान। है। आजम 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 Exactly. आजम Yes. आजम। आजम। Surprisingly. So हाँ Islamabad को नहीं हल्का लेना boys. हाँ। राइट। अच्छा, पिछले मैच में आजम वाज वॉकिंग इन एंड शादाब ने उसको रोका एंड सेड सेंड मुबस्सिर इन। तो मुबस्सिर है, मुबस्सिर क्योंकि वो मुबस्सिर ने लो बैट, लो वैल्यू पे गए थे। लो वैल्यू के अलावा बैट नहीं किया हुआ था उसको, इसलिए बैट कराया। प्रॉब्लम मुझे उसके अलावा कोई रीजन समझ नहीं आया, बिकॉज़ इट वाज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम था, स्पिनर बॉल कर रहे थे, आजम आता है, गेम खत्म था। Right. Okay, guys. So we need to go to the hashtag. We've done the predictions. Production team, please can you load the hashtag on the screen? आज तो कर दो यार। Okay, I think it's coming now. So
आज वैसे लाइक बहुत कम क्राउड था वैसे गेम में. लाइक मैं ये देख रहा था, क्राउड काफी कम था और मतलब ज्यादा शोर वोर भी नहीं था. कुछ बोला नहीं मैंने. या लेकिन वो मैच भी अगेन कराची कोयटा का था ना, टेबल के बॉटम में है, तो अगेन मतलब क्राउड भी ऐसा मैच देखना चाहता है जो एक दो अच्छी टीमों के बीच में हो, तो दोनों की परफॉर्मेंस तो नहीं आ रही ना. खुरचन जैसे कहा था सोहेब ने. Right. So the only hashtag for today comes from Shahzev Sheikh. He writes, "If Malik goes to draft next season, which team do you think is likely to pick him?" I think Mumbai कोयटा Indians उसे ले लेगी. कोयटा ग्लैडिएटर्स लेगी. They specialize in picking up washed players. Chris Gayle, Faf du Plessis, Martin Guptill, Shahid Afridi, Mohammad Hafiz, Dale Steyn, जो अपने करियर के खत्म कर चुके हैं ना, सब आगे कोयटा ग्लैडिएटर्स में रेस्ट करते हैं. अच्छा, कोयटा और So, कराची का क्या सीन है? what are the odds? Yeah. कोयटा जो है वॉश्ड अप प्लेयर्स देती है और कराची जो है अननोन प्लेयर उठा के ले आती है यूरोपियन कोई लीग से. तो बड़ी जो है सही चलता What are है. the odds of him calling it a day? सॉरी, What are the odds of him calling it a day? मलिक. हाँ. यार the chances are यार very slim. अभी Very आठ slim. आठ महीने पहले ही वाज गिविंग अ लाइक अ स्टेटमेंट. एंड 6 महीने पहले ही वाज गिविंग अ स्टेटमेंट के देयर इज लाइक 3-4 years of cricket left in me, international cricket There- that is, by the way. Yeah, very so very I very don't. slim chances. And the thing is that the players in your circuit ना, वो they rate him very highly, कि बहुत अच्छा player है, experienced है, ये है वो है. So I mean, and the cricket fraternity rates him very high. So someone will get him eventually. Like Hafiz भाई pick हो गए यार. वो I think high मतलब catches. You need someone under the high catches. उसके लिए वो अच्छा है. हाँ, हाँ. मलिक जो है, जब मलिक पेशावर में भी जब पिक हुआ था तो आखिर तक नहीं पिक हो रहा था. आई थिंक सप्लीमेंट्री में पिक हुआ था या किसी और कैटेगरी में हुआ था. वो आखिर तक पिक नहीं हुआ था. पेशावर ने बहुत आखिर में जाके पिक किया था. अच्छा, उस वक्त his performance with Peshawar was okay. मतलब wasn't हाँ, bad. सही खेले. हाँ, it was सही खेले. Okay, guys. So that was the only hashtag for today. हम comments पे जाते हैं जल्दी, right? So one of the users known as Thumbs Down Moral to writes, Azam versus Quetta, Guptill versus Karachi, Riley versus Quetta. Who has the best FSPR? Former side Penta rate. आता नहीं. रूसो भी है यार. रूसो ने Russo. बहुत मारा है. मैं कोयटा को बहुत मारा है. I think Russo against Quetta averages like 100 something. हाँ. Like 190 196 average. 190 का स्ट्राइक रेट भी 190 के अबव है. बहुत मारा है. बहुत मारा है. 3 साल से पिट रहे हैं. Okay, so the next comment comes from Abdullah Ibrahim. Karachi गया यार. Yeah, seriously गया. सर आप इस मैच हमारे शो की रिकॉर्डिंग देखें. शुरू से हम आपको बता चुके हैं कराची कैसे पहुंच सकता है. Okay, Hassan bhai, wanna add anything? I agree with what you have just said. All right. Going on to the next comment is from Fatma. She writes, Quetta जीत गया. मैं चली गई थी कि अब क्वेटा हार गया. I'm shocked. Oh, yeah. Karachi ने watch किया basically game. Like very poor second half performance by Karachi, especially after वो जो strategic timeout के बाद जब वापस आए थे ना, it was very bad. Like they gave up. Once he crossed 50 तो he was someone else. यार वो एक मीम चल रहा होगा ना, केके के ड्रेसिंग रूम में कोई फोन पे बात कर रहा था. वो लगाया था मैंने. Okay. तो क्या है कि भाई कोई स्ट्रेटेजी टाइम आउट में कोई स्ट्रेटेजी होती है. मतलब आप गलत समझे. जी सर. Okay, next comment. Sayyid Muzammil Ahmed writes, seeing KK play reminds me of that Moin Akhtar show where he says, हमारा मत सो हमने जीतेगा. हमने जीतेगा. That's from Loose Talk, by the way. That's the show that he's talking about is from Loose Talk, in which he becomes a Bangladeshi cricketer. Okay.
ऑलराइट, आपके बशीर राइट्स, जब तक कराची में मलिक इमाद और आमिर और वसीम अकरम है ना, तब तक ऐसा ही होना चाहिए कराची के साथ। यार अब 4 लोगों की वजह से अगर आप पूरी फ्रैंचाइज और उनके फैन बेस को बोलोगे कि आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो दैट्स अ बिट अनफेयर। हाँ, वी अंडरस्टैंड कि ये 4 लोगों ने परफॉर्म नहीं किया है, और कराची के खुद जो फैंस हैं उनका गुस्सा और गम जायज है, विच इज वाई वी से ऑन द शो कि आपको हार्ड रीसेट की जरूरत है, विच By आई the way, थिंक this comment came in like 25 times or something. यही वाला। I think ये है कि इन 4 नामों में से 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ उन्होंने ही परफॉर्म किया, लाइक इमाद और आमिर, मतलब उसके अलावा के तरफ से कोई परफॉर्मेंस भी नहीं आई है। तो वो एक ऑफ द फील्ड मामला एक अलग है, पर ऑन द फील्ड तो एटलीस्ट कराची किंग्स के लिए दोनों की परफॉर्मेंस तो है। सो बाकी मलिक की हार नहीं है। Okay, going on to the next comment. बहावल का मौका राइट्स, कराची 50% टूर्नामेंट तो ड्राफ्ट डे पर ही हार गया था। रेलू कट्टे और ड्रेड्स आर्मी इनके पास थी। MS धोनी हर कोई नहीं हो जाता जो जीत के ड्रेड्स आर्मी के साथ, आई डोंट नो व्हाट ड्रेड्स आर्मी के साथ, आई डोंट नो व्हाट स्टूपिड लेकिन टॉपिक। ये बात तो मैं भी खैर हमेशा कहता हूँ कि 50% फैसला वैसे टूर्नामेंट का ड्राफ्ट में हुआ है। आई थिंक आई एग्री विद आई थिंक ड्राफ्ट जो है उनका वैसे भी जो है लाइक इतना कोई सॉलिड नहीं गया था, और उनकी जो रिटेंशन थी उस हिसाब से भी ड्राफ्ट डिडंट मेक एनी सेंस एट ऑल। ओके, SME edits by Said Minhal writes, I don't know if that's a coincidence or Minhal is commenting. He writes, very poor performance by KK. Now they should start making TikTok videos instead of playing cricket. I think they are making TikTok videos, if I'm not mistaken. They are Right now, making they are making tuk videos. TikTok पे टुक वीडियोस बना रहे हो। ओके, आके बशीर अगेन राइट्स, हर कोई टीम फॉरेन प्लेयर्स पर बहुत डिपेंडेंट है एक्सेप्ट पेशावर लोकल टैलेंट यूज कर रही है। TKC पेशावर को पहला मैच जितवाता है, आई थिंक अरे हमें कोयटा ग्लैडिएटर्स को निशन ने मारा था, और रॉबमन पावल ने भी उनको मैच जितवाए हैं। सो कंट्रीब्यूशन तो रही है। आई थिंक पेशावर का डिफरेंस है कि वो ऊपर नहीं खिलाते फॉरेनर को अपने, जैसे आजाद भाई ने कहा था कि उनका जो एंड में उनका हिटर आता है, तो जब भी फील हो रहा है कि उनकी बैटिंग चौथे से शुरू हो रही है। अब okay, next comment comes from Saad Zahid. Need Waqas to read this. Okay, I'll try to read. Okay, I'll try to read this. झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गरम रखने का है एक बहाना। यार मुझे समझ नहीं आती ये किसने परपेचुएट किया कि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती है, कौन था जिसने ये लिखा था? यार ये पिछले 15 मिनट से ये कमेंट पढ़ रहे हो तुम, ड्रामे ना करो। अच्छा, आई थिंक मुस्तफा लेके आया था। मुस्तफा लेके आया था। ये कमेंट जो है ये याद करके पोस्ट करवाया गया है यहाँ पे। यार मैं जो है ना, मुझे मुश्किल पता है किस चीज में होती है, उर्दू में पढ़ने में नहीं होती है, इंग्लिश में जो वो मुझे समझ ही नहीं आती कैसे लिखते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट कमेंट इज महविश दस्तगीर। शी राइट्स, फेल्ट लाइक अ मैच वेयर बोथ साइड्स वर ट्राइंग टू सी हु कैन प्ले द वर्स्ट। ट्रू, वेरी यार, आई थिंक इस वजह से भी ना थोड़ा लीग का जो है वो हम अभी, मैं सोशल मीडिया पे ये बड़ा नोट करता हूँ, लोग लिखते हैं कि इस साल मजा नहीं आ रहा। आई थिंक इस साल वही वाली बात है कि अगर आपकी जो, क्योंकि कराची में मतलब 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, राइट, अगर आप इतनी बड़ी फैन बेस की टीम को इतना बुरा खिलाओगे तो ऑब्वियसली वो एंगेजमेंट लेवल आपको नहीं मिलेगा PSL के अंदर जो मिलना चाहिए था। और ऊपर से फिर लाइक बहुत बड़ा कराची का पार्ट क्वेटा का भी फैन बेस रखता है, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर टीम कंपेटिटिव हो, जिसकी वजह से फिर लीग का जो है स्टैंडर्ड ऊपर जाता है। व्हाट डू यू गाइस थिंक?
यार मेरा ये ख्याल है जो फर्स्ट कपल ऑफ गेम्स ना ओपनिंग के जो थे दे वर क्वाइट ब्लॉकबस्टर गेम्स, 1 रन से जीतना, 2 रन से जीतना। जो पहली गेम थी इस सीजन की और जो दूसरी तीसरी गेम थी, दे वर वेरी क्लोज। उसके बाद वंस द टीम्स गॉट दोस विन्स आउट ऑफ द वे, तो जो जीत रहे थे और जो हार रहे थे ना, वो एक एलिगेटर ग्राफ होता है जिसमें गैप ज्यादा होना शुरू हो जाता है। सो दैट काइंड ऑफ स्टार्टेड कमिंग इन। तो आई वुड से कि अब जो टॉप 4 है, एटलीस्ट टॉप 3, they're still battling it out very well. मतलब काफी close competition है, good cricket on display still. Right, Jibran bhai, if you can add to this. यार एक तो बहुत कुछ रखूंगा, लेकिन ये इम्प्रेशन के ऊपर ज़्यादा है। देखें 6 टीमों पे या 10 टीमों का टूर्नामेंट होगा, उसमें आपको कुछ टीम्स बैलेंस नज़र आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। जो लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं इस दफ़ा मज़ा नहीं आ रहा, आप उनकी प्रोफाइल्स निकाल के देख लीजिए। वो इट्स पार्ट ऑफ देयर टारगेटेड ट्वीट्स। इन द एंड मकसद ये होता है कि उसके बाद कल परसों ये ट्वीट भी मिले कि यार दीज 2 टीम्स शुड नॉट प्ले। सो देखें पहले 3 सीजन के लिए लाहौर जो है वो मुसलसल आखिरी नंबर पे भी आता रहा, बट ये कि उस वक्त भी लीग कम्पैटिटिव थी, लीग अभी भी कम्पैटिटिव है। एक ना एक 2 टीम्स इस तरह की रहेंगी। हम IPL में भी देखते हैं इस तरह, हर साल में इस तरह की 1-2 टीम्स नज़र आती हैं, लेकिन कम्पैटिटिव क्रिकेट आपको हर लीग में नज़र आती है। हर टीम हर मैच नहीं जीत सकती, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी सबकी डिफर कर सकती है। एक लिमिटेड पूल ऑफ प्लेयर में से कुछ टीमें बहुत अच्छा स्क्वाड बना सकती हैं, कुछ नहीं बना सकती। इंप्रेशन के ऊपर है, लोग आप पे इंप्रेशन ये डालने की कोशिश करेंगे यार दीज 2 टीम्स शुड नॉट प्ले, 2 टीम्स आर XYZ, कोई बोलेगा क्लाउन टीम्स है वगैरह वगैरह। मकसद इन सब की प्रोफाइल्स निकाल लीजिए, इन सब के आपको नीचे यही ट्वीट्स मिलेंगे। तो क्वालिटी और डिफरेंस हमेशा रहेगा, टीम्स ऊपर नीचे रहेंगी, इस पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट इस दफ़ा भी देखने में आई है। जैसा भी हुसैन ने भी कहा कि मैचेस बहुत क्लोज देखने को मिले हैं। देखें लीग की कॉम्पिटिटिवनेस का 2-3 चीज़ों से अंदाजा लगाते हैं, मैट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं। एक ये कि मैचेस कितने क्लोज जा रहे हैं, मैचेस इस दफ़ा भी उतने ही क्लोज जा रहे हैं जितने आपके पहले जाया करते थे। दूसरा, लोकल टैलेंट कितना ज़्यादा निकल कर आ रहा है। इस दफ़ा आई बिलीव ज़्यादा बेहतर बैटिंग टैलेंट निकल कर आ रहा है ओवरऑल लीग में से। तो ऐसा नहीं कि डिसबैलेंस है लीग में, इस तरह का रहेगा। लीग ओवरऑल कॉम्पिटिटिव है। जो लोग कह रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा, वो दे हैव देयर ओन रीजंस, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। Right. Sohaib, if you want to add to this, or should I go to the next comment? Yeah, you should go to the next comment. The next comment is another, जिसे कहते हैं, thing of its own. Mohammad Sameer Khan writes, should Shoaib Jatt replace Wasim Akram in KK management? I mean, ये if तो जिब्रान से पूछना चाहिए, because I believe Jibran is good friends with I think I personally think कि आपको Shoaib Jatt, whatever he does, right? I'm not gonna comment on it, but he's a journalist basically, right? Reporter है, journalist है. तो KK का जो वो है वसीम अकरम है, his role is not media related, his role is cricket related. तो I think अगर आप, it's not only Shoaib Jatt, अगर आप किसी और रिपोर्टर या जर्नलिस्ट को उठा के उस रोल में ले आओगे तो दैट प्रोबेबली वुडंट वर्क, क्योंकि जो है एक्सपर्टीज। ये सवाल इतना डीप नहीं था। अच्छा नहीं यार, मैं फिर आपको भी पता है मेरे सोशल पे क्या हो रहा होता है, तो मैं इसलिए अब सबको इत्मीनान। मैंने मिस किया, सॉरी मैंने मिस किया, क्या बोला हसन भाई आपने? So वकास भाई was saying कि एक जर्नलिस्ट जो है वो एक किसी कोच की जॉब नहीं ले सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि unless you want to head an organization like such as PSL. I had this in mind too. Great, good point. So moving on. आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं, अभी कमेंट्स हैं। चलें। Okay. All right. So Rashid Qureshi writes, should Karachi completely need to change its management? I think we've talked about this a lot, right? I think we've covered this. आधा शो इसी पे बात हुई थी. So either the management, either the way of management. Very as true. a verb or as a noun, yeah. Very true. Okay. So next comment. Tariq Hussain writes, should Imad Wasim have left the field at what proved to be a pivotal and crucial moment in the game? I think yeah. I mean like उसको इंजरी का वो मसला था, उसके पैर में लग गई थी, तभी वो बाहर जा रहा था। जो प्रो एथलीट्स होते हैं, I don't think कि they should risk
aggravating their injury just because कि उनको 5 मिनट टीम को साथ देना है. कराची का सीजन वैसे भी ओवर ही हो चुका है, तो आई डोंट थिंक दैट वाज एनी, मतलब मैं उसको एज अ प्रॉब्लमैटिक डिसीजन नहीं देखता हूँ. आई मीन यू गाइस कैन हैव a few words on it if you guys want. No, I think so. सही. All right, so moving on. Mudassir Asif, right? Is this Sarfaraz's last PSL? अच्छा सवाल है काफी. Sohaib, I think it is sad ending. As a fan, आप एक अपने फेवरेट प्लेयर को जो है वो इस तरह का एंड नहीं आप अपने दिमाग में रखते, ना आप पसंद करते हो. But it seems like at least as a captain तो उसका लास्ट PSL नजर आ रहा है. Player probably they could retain him, शायद स्क्वाड में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि they retain him as captain. So ये तो as a player हो सकता है. should they retain him as captain? होगा क्या ये छोड़ दो. In your opinion, should they retain him as captain or नहीं? No. QG सपोर्टर कह रहा है नहीं, तो फिर हमारा ओपिनियन like it shouldn't track No, on this. I'll agree on that कि सरफराज को पिछले साल तक भी मैंने कहीं से अंदर से घूमते घामते बातें सुनी थी कि लास्ट सीजन जो होगा वो उसका लास्ट सीजन होगा. मुझे तो लग रहा है शायद हो सकता है कि मे बी ही वांट्स टू गो ऑन अ हाई नोट, जिस तरह का हमारी पाकिस्तानी एक मेंटालिटी होती है कि यार एक अच्छा टूर्नामेंट करके जाना चाहता हूँ. ये बहुत सारे, तो आई थिंक मुझे भी लगता है शायद ये, बट आई थिंक दिस इज अ टाइम कि उसको अब इफ यस अगर क्यूजी मैनेजमेंट उसको बहुत ज्यादा फिर भी अजीज रखती है, उसके स्ट्रेटेजिकली दे वांट टू बी, तो हो सकता है कि वो अपने स्क्वाड में रखे. But he seems to have cemented his place in the test side currently, at least. Yes. Yes. यार I think सरफराज को ना वो इस सीजन में विव रिचर्ड तो मेंटर में के रोल में नहीं आया ना, तो आई थिंक सरफराज को आई थिंक दे शुड व्हाट दे शुड डू इज कि सरफराज को रखें अपने साथ, लेकिन उसको एज अ मेंटर के रोल में रख लें. जैसे तो इससे उसका हाँ बिल्कुल सही. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट. Shazli writes, "Sir, great analysis, mashallah. Sir, PSL has become a very good league. I'm from Karachi, living in London, but here people they really watch this league. I think overseas जो है वो free to air पे है ना PSL. PSL is free to air, right? या streaming Yeah. services के साथ. Yeah. Yeah, तो I think it's pretty good. PSL की यहाँ पे भी काफी जो है वो अच्छी viewership है. तो yeah, league is gaining a lot of eyeballs. Okay. Bahawal Kamoka, last question, last comment of the evening, boys. Almost 22 man, SY 13-14 मैचेस से लास्ट ओवर फिनिश हो रहा है. इससे ज्यादा बेहतर मैचेस कहाँ मिलेंगे? अब केके और यूजी फैंस को मजा नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? जाए बट ऑल थ्री ऑफ अस. फेयर इनफ यार, वेरी फेयर इनफ कमेंट. आई मीन लाइक आई एग्री. ऑब्वियसली केके जो है वो के फैंस थोड़े डिसहार्टेंड है. क्यूजी वाले आज थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब खाने खाने पकवा रहे हैं आज फरमाइश करके, तो लाइक उनका बनता भी है. बट या वेरी गुड, वेरी KK has been on the losing side of close matches mostly, but they've had the most close matches. I think बहुत close में, ज्यादातर close matches KK, आज भी close match था. So they, I think वो है कि एक आध रिजल्ट इनके फेवर में आता तो they would have been like in the playoffs या qualification का होता, but हारे हैं वो. And I think despite all the criticism and all the things that are being talked about on social media, and fairly, they've played better than they played last year. Like वैसे तो नजर आ रहा है कि एक से बेहतर 2 विन है, लेकिन वैसे भी they played like last year बहुत बुरे थे वो. Right. Okay, guys. So yeah, that was our show. काफी लंबा हो गया वापस यार. ये हमेशा इतना जाता है, मतलब मुझे अब जो है वो प्रोड्यूसर जो है बंद करा देंगे, बोलेंगे भाई तुम लोग कितने लंबे लंबे शो करते हो. बट या थैंक यू फॉर आवर ऑडियंस फॉर स्टिकिंग अराउंड अंटिल नाउ. वी कवर्ड द कराची वर्सेस कोयटा गेम, और कल डबल हेडर है, सो वील बी बैक अगेन with analysis on both the games, same time right after the evening match. Thank you Gibran, thank you Sohaib, thank you Hassan bhai for joining us, and we'll catch you, all of you, tomorrow inshallah after the game. So until then, assalamu alaikum and have a great evening. Allah Hafiz. Yes.